जो कि मूव नहीं करेगा, पर जो भी टाइम हमने पीटी पे डाला होगा वो ईटी में हमें मूविंग में नजर आएगा, तो वो हमारे पास काउंट्स आने शुरू हो जाएंगे, 10 सेकंड, 1 मिनट, जो भी आपने दिया होगा, ठीक है। और वो हम स्टोर करेंगे एक मेमोरी के अंदर, so that we can use that time to manipulate the processes or to create further more sub processes, and whatever the parameters it will have, that is in, q, pte, that all are available with the db, that will be at the top of the timer, that will also be available with the db इंस्टेंस डेटा ब्लॉक। तो सारी की सारी चीजें हमारे पास इंस्टेंस डेटा ब्लॉक में भी अवेलेबल रहेंगी। नाउ अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, द प्रॉपर्टी ऑफ द टाइमर। अभी हमने इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं की है कि टाइमर की प्रॉपर्टी है क्या, ये काम कैसे करता है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ द टाइमर लाइज एट क्यू, जो प्रॉपर्टी है वो क्यू पे लाई करेगी। वट एवर द प्रॉपर्टी ऑफ द टाइमर लाइज एट क्यू, जो भी उसका फंक्शन होगा, रिजल्ट होगा, वो क्यू पे शो होगा, ठीक है। सो वी हैव द टाइमिंग डायग्राम ऑफ पीटी, टीपी। टीपी मीन्स पल्स टाइमर। नाउ दिस इज इन means, let me take a pointer so that we can, so suppose this is your 0.0 input you will provide it to, and this is your elapsed time, and this is your pt. Pt means whatever the time you have provided to the timer. So we have provided, suppose t hash 10 seconds, 10s, or here in et you have provided md 4, and at q you have q 0.0. Okay, so when you will turn on the timer, that means when we turn on the input of the timer, ET will start calculating the time from 0 to 10 seconds. From 0 to 10 seconds. So this is the 10 seconds time bound. That means ये 10 seconds को represent कर रहा है. And same time, simultaneously, Q0.0, the output will turn on. It will be turning on for 10 seconds. After 10 seconds, it will be turning off. The output जो है वो turn off हो जाएगा. But AT will stick to 10 seconds. It will not return to 0. Because as you can see that input is still on. Input is still on. तो जब तक हमारा इनपुट ऑन रहेगा तब तक हमारा ये ET जो है 0 पे नहीं जाएगा। बट Q पे क्या होगा कि 10 सेकंड्स पूरे होने के बाद हमारा आउटपुट बंद हो जाएगा। दिस इज टीपी टाइमर, जनरेट पल्स और पल्स जनरेशन, ठीक है। तो जैसे ही इनपुट ऑन होगा इट विल टर्न ऑन द आउटपुट एज वेल एज टाइमर विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 0 to 10 seconds. As it will completed the 10 seconds, ET will stick to 10 seconds. It will not go beyond 10 seconds because input is on, but output will be turned off after calculating 10 seconds. ये था एक केस। अब दूसरा केस लेके चलते हैं, और दूसरे केस में क्या आएगा, जैसे ही हम लोग इनपुट को ऑफ करेंगे हमारा ET भी 0 हो जाएगा। तो दूसरा केस, अब यहां पे इसकी प्रॉपर्टी पता लग रही है हमें। नाउ व्हेन विल टर्न ऑन द इनपुट at here, as you can see, this is a small duration. Suppose this is a duration of 2 seconds. So as we'll turn on the input, output simultaneously turn on हो जाएगी, and same timer will also start calculating, and within few seconds I'll turn off the input. I will turn off the input. Now see what happened. Input off है, but timer will remains in on condition and calculating the time.
and reaches to 10 seconds and then after turned off. आउटपुट भी हमारा ऑन रहेगा. दैट मीन जब आप i0.0 को ऑन करोगे और सेम टाइम पे आपने ऑफ भी कर दिया, तो क्या होगा, ये टाइमर जितना आपने उसको पीटी प्रोवाइड किया होगा उतनी देर चल के साथ में आउटपुट को भी उतनी देर ऑन करके ऑफ हो जाएगा, उतनी देर चल के ऑफ हो जाएगा. इन बिटवीन आप जितनी मर्जी बार स्विचिंग करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या करेगा अपना टाइम कैलकुलेट करके ऑन करेगा. तो इट मींस व्हेन अ टाइमर हैज input supply, it will start, it will trigger the timer, and if you will remove the supply, it will keeps in triggering and calculating the time, whatever the time you have given to the timer. After calculating that much time, it will turn off, or same as like it will happen with the output. Output भी simultaneously on हो जाएगी. जब तक timer चलता रहेगा चलेगा, उसका तो ऑफ हो जाएगा. That means this particular timer is positive एज ट्रिगर्ड. दैट मीन्स अगर आपने इसको पॉजिटिव एज प्रोवाइड कर दिया तो इट विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग. डजंट मैटर उसके बाद आपने उसको ऑफ कर दिया, मतलब सप्लाई रिमूव कर दी, स्टिल इट विल कैलकुलेट द टाइम वट एवर द टाइम वी हैव डिसाइडेड, वी हैव पुट इट इनटू द पीटी, और उसके बाद ऑफ होगा. दिस इज टीपी टाइमर. क्लियर है, समझ में आया? हम लोग अभी करके भी देखेंगे, ठीक है. Now next timer is T-on timer, that is on delay timer. Same parameters, D भी यहाँ पे आएगा. On delay timer में क्या होगा, it will provide delay to turn on the output. It will provide delay to turn on the output. दो केस हम लोग यहाँ पे लेंगे. पहले जब हमने इनपुट को ऑन किया, तो यहाँ पे जब इनपुट ऑन हुई, पीटी में सपोज 10 सेकेंड्स दिए हुए हम लोगों ने, ठीक है. ईटी में हमने सपोज मेमोरी दे दी एमडी, जो भी हमको देना है यहाँ पे, और ये हमारा आउटपुट है. तो जैसे ही इनपुट को ऑन किया, इट विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग द टाइम, बट आउटपुट रिमेन्स इन ऑफ कंडीशन बिकॉज दिस इज ऑन डिले. इनपुट को ऑन करते ही टाइमर ने अपना टाइम कैलकुलेट करना शुरू किया. जैसे ही इसने 10 सेकेंड्स पूरे कैलकुलेट किए, एट दैट पर्टिकुलर टाइम इट विल स्टिक टू 10 सेकेंड्स, it will not return to 0, and the output will turn on after the delay. So जो भी हमने डिले दिया था उसके बाद हमारा आउटपुट ऑन हो जाएगा, और it will remains high till the input is in on state. जब तक आफ्टर डिले के बाद जब तक हमारा इनपुट ऑन रहेगा तब तक हमारा आउटपुट ऑन रहेगा. जैसे ही हमारा इनपुट हमने ऑफ किया, timer will return to 0 and same as like Q will also be turned off. तो जैसे ही हमने पल्स दिया, आफ्टर डिले जो भी हमने टाइम दिया था उसके बाद हमारा आउटपुट ऑन होगा. आउटपुट तब तक ऑन रहेगा जब तक हमारा इनपुट हाई रहेगा. जैसे ही इनपुट को ऑफ किया, हमारा आउटपुट भी ऑफ हो जाएगा. तो सेकंड केस will turn on the timer, it will turn on the कैलकुलेशन ऑल्सो, बट आउटपुट अभी हमारा नहीं आया. एज वी नो कि डिले के बाद ही आएगा. यहाँ पे हमारे पास अभी आउटपुट हाई नहीं हुआ, और विद इन फ्यू सेकेंड, सपोज अभी 10 सेकेंड पूरे नहीं हुए, 5 सेकेंड के अंदर ही हमने आउटपुट इनपुट को ऑफ कर दिया. सो टाइमर विल ऑल्सो रिटर्न टू 0 एंड दिस आउटपुट विल नॉट टर्न ऑन बिकॉज ये डिले के बाद ही ऑन होगा. दैट मीन्स this particular timer is positive edge dependent. टीपी ट्रिगर्ड था, ट्रिगर्ड और डिपेंडेंट में डिफरेंस है. उसे सिर्फ एक ट्रिगर चाहिए, एक फ्लिकर चाहिए ऑन होने के लिए. यहां पे पॉजिटिव एज या पॉजिटिव सिग्नल डिपेंडेंट है. जब तक उसको पॉजिटिव सिग्नल मिलता रहेगा, दैट मीन्स तब तक हमारा टाइमर चलेगा. यानी कि जो भी आपने पीटी दिएगा उसको कैलकुलेट करेगा, और जैसे ही पॉजिटिव को हमने ऑफ कर दिया, यानी कि इनपुट को ऑफ कर दिया, सेम टाइम पे हमारा टाइमर भी 0 हो जाएगा और आउटपुट भी ऑफ हो जाएगी हमारी. तो ये है हमारा टी ऑन डिले या टी ऑन डिले टाइमर. इट विल प्रोवाइड डिले टू टर्निंग ऑन द आउटपुट, बट इट इज पल्स डिपेंडेंट. इफ इन बिटवीन द प्रोसेस you will turn off the input, it will return the timer to 0 and simultaneously
आपका आउटपुट भी नहीं जनरेट होगा, बिकॉज इट विल बी जनरेटिंग आफ्टर कैलकुलेटिंग द पीटी टाइम. Okay. Third timer is off delay timer. Now it's as its name suggests off delay. Off delay. ठीक है, वही सेम पैरामीटर्स है. बस फर्क क्या है कि जैसे ही हमने इनपुट को ऑन किया, टाइमर, दिस इज योर ईटी, सॉरी दिस इज योर ईटी, ईटी विल नॉट टर्न ऑन. दैट मीन्स टाइमर अपना टाइम कैलकुलेट नहीं करेगा उस टाइम पे, बट द आउटपुट विल बी टर्न्ड ऑन साइमल्टेनियसली. जैसे ही आपने इनपुट को ऑन किया, आउटपुट हमारी साथ के साथ ऑन हो जाएगी, बट टाइमर अपना टाइम बाउंड जो है उसको कैलकुलेट नहीं करेगा. सपोज इसे भी हमने 10 सेकंड दिए. एज सुन एज विल टर्न ऑफ द इनपुट, जैसे हमने इनपुट को ऑफ किया, टाइमर विल स्टार्ट काउंटिंग द प्रीसेट टाइम. जो भी हमने प्रीसेट टाइम दिया, सपोज 10 सेकंड दिया है, तो 10 सेकंड का टाइम ये काउंट करना शुरू कर देगा, बट हमारी आउटपुट अभी भी हाई रहेगी. इट विल टर्निंग ऑफ द आउटपुट आफ्टर कैलकुलेटिंग द प्रीसेट टाइम एंड देन टर्न ऑफ. तो इसमें क्या है, वट एवर द आउटपुट that will be connected with the T off timer will be turned on as soon as you will turn on the input, but the timer will not start calculating the time. The countdown will remains steady or static. When we'll turn off the input, the timer will start calculating the preset time. After preset time, it will turn off the output. तब तक हमारा output high ही रहेगा. Now, अब हमने यहाँ पे इनपुट को ऑन किया, सेकंड केस आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा, हमारा ईटी अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा, बट आउटपुट हमारा हाई हो गया है. इन बिटवीन मैंने यहाँ पे इनपुट को ऑफ किया. जैसे इनपुट को ऑफ किया, टाइमर ने पल्स कैलकुलेट करना शुरू, यानी कि टाइम बाउंड कैलकुलेट करना शुरू कर दिया. बट अभी 10 सेकंड का टाइम पूरा नहीं हुआ, मैंने फिर से इनपुट को ऑन कर दिया. देन द टाइमर विल stop calculating and return to 0, and output remains in on condition. Whenever or when you'll again turn off the input, it will start calculating that time. If the input remains in off condition till the preset time is not calculated, then it will turn off the output. ये है. तो हमारा जो टी ऑफ टाइमर है वो है नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव एज ट्रिगर. नेगेटिव एज ट्रिगर, नेगेटिव एज ट्रिगर यानी कि नेगेटिव के ऊपर इसका टाइमर स्टार्ट करेगा रनिंग करना. ठीक है, तो अभी हम इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकल पे भी कैसे काम कर रहा है. Okay, is my screen visible? Okay, blocks में टाइमर. तो यहाँ पे हमने लिया पहले इनपुट एंड देन हमने कॉल किया टाइमर को. तो पहला टाइमर है टीपी टाइमर. जैसे ही ड्रैग ड्रॉप करो, डबल क्लिक करो, अपने आप आ जाएगा. जैसे ही हमने टाइमर लगाया, उसका इंस्टेंस डाटा ब्लॉक विल कम अलोंग. ये आ गया हमारा टाइमर. इनपुट दे दिया, प्रीसेट टाइम दे दिया हमने, सपोज 10 सेकेंड्स. ठीक है, एंड ईटी पे, ओके, ईटी पे दे दिया हमने, सपोज अभी कुछ नहीं देते हम लोग, दिखाता हूं क्या होता है यहाँ पे. और यहाँ पे दे दिया Q0.0, I0.0.
So see, this dB having the parameters of ET. So if you are not giving the ET memory over here, then it will utilize the memory of dB. Now the moving time will be shown over here. Will be shown over here. It will give the memory over here, that is MD, then it will give the time over here. देखो आ गया ना 0 ms यहाँ पे टॉप पे। अब जैसे ही हमने जैसे ही हमने i0.0 को ऑन किया, लेट्स टेक i0.0 और यहाँ पे ले लेते हैं हम टाइमर का ET, so दैट हमको यहाँ पे टाइम दिखता रहे, और यहाँ पे ले लिया हमने Q। ओके, सो जैसे ही मैं इनपुट को ऑन करता हूँ, टाइम चलना शुरू हो गया और हमारा आउटपुट भी हाई है। देखो ऊपर शो हो रहा है, यहाँ पे नहीं शो हो रहा। जैसे 10 सेकंड पूरे हुए ये ऑफ हो जाएगा और इट विल स्टिक टू 10 सेकंड्स। इट विल स्टिक टू 10 सेकंड्स क्योंकि हमने 10 सेकंड का ही टाइम दिया है और यहाँ पे हमारा आउटपुट हो। जैसे ही हम लोग इनपुट को ऑफ करेंगे हमारा टाइमर भी 0 हो जाएगा। एज यू कैन सी दैट इट विल बी 0। ये हो गया 0। नाउ सेकंड कंडीशन सेज दैट I'll turn on the input and same time I'll turn off it. To see timer will keep in running mode. देखो इनपुट ऑन करके ऑफ कर दिया, तो इसने जो भी इसका प्रीसेट टाइम है, जो इसका साइकिल है, उसको कैलकुलेट करने के बाद ही ऑफ होगा। Let's have a look one more time. As you can see that ऑन है, ऑफ कर दिया, तो हमारा टाइमर चल रहा है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द टाइमर। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द टाइमर, टीपी टाइमर, कि एक बार इसे ट्रिगर मिल गया देन इट विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग द टाइम। डजंट मैटर इफ विल रिमूव द पल्स फ्रॉम द इनपुट, इट विल रिमेन इन कैलकुलेटिंग, इट विल रिमेनिंग इन ऑन कंडीशन एंड कीपिंग द आउटपुट ऑन टिल द प्रीसेट टाइम इज ओवर। जैसे ही प्रीसेट टाइम खत्म होगा वैसे ही हमारा आउटपुट भी ऑफ हो जाएगा। तो ये है प्रॉपर्टी इसकी। अब लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे MD4। अब टाइमर ले लेते हैं हम लोग T ऑन टाइमर। दिस इज ऑन डिले टाइमर, सेम है, 10 सेकेंड्स का लिया है। अभी इसमें हमने मेमोरी भी लगा दी, तो अब मेमोरी के ऊपर शो होगा टाइम C, मेमोरी एज वेल एज DB। अब ये क्या कह रहा है कि व्हेन आई टर्न ऑन द इनपुट आफ्टर अ डिले, देखो टाइम चल रहा है पर आउटपुट ऑन नहीं है। टाइम चल रहा है बट आउटपुट ऑन। जैसे 10 सेकंड पूरे होंगे उसके बाद इट विल टर्न ऑन द आउटपुट। प्रॉपर्टी लाइज एट हियर, रिमेंबर। क्यों बता रहा हूँ, जैसे हम आगे इसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे यूजिंग कंपेयर एंड अदर इंस्ट्रक्शन, तो उसमें आपको इसका यूटिलाइज आएगा। ठीक है, ये ऑन हो गया। अब जब तक मेरा इनपुट ऑन है, देखो ये 10 पे स्टिक है, तो जब तक मेरा इनपुट ऑन है तब तक हमारा आउटपुट भी ऑन रहेगा आफ्टर डिले। जैसे ही मैंने इसे ऑफ किया टाइमर विल रिटर्न टू 0 एज वेल एज आउटपुट टर्न्स ऑफ। तो ये हो गया ऑफ। अब नाउ आई विल गिव द ऑन कमांड एंड सेम टाइम आई विल गिव द ऑफ कमांड। सी टाइमर विल रिटर्न टू 0 और आउटपुट हमारा ऑन नहीं होगा। So this particular timer is pulse dependent, positive pulse dependent. अगर इसे ऑन कमांड मिलती रहेगी तो ही ये चलता रहेगा और डिले कैलकुलेट करने के बाद आउटपुट को ऑन करेगा। It will remove the supply, then timer will return to 0 and output will remain in off condition. ये है T on timer, on delay timer, providing the delay to turning on the output. So next is T off timer. T ऑफ टाइमर की प्रॉपर्टी ये है कि जैसे आप इनपुट ऑन करोगे साइमल्टेनियसली इट विल टर्निंग ऑन द आउटपुट, बट ET विल नॉट कैलकुलेटिंग द टाइम। सी 1 ऑन हुआ, आउटपुट हाई हो गया, बट टाइमर अभी कैलकुलेट नहीं करेगा बिकॉज इट इज
नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, जैसे ही 0 डालूंगा, ऑफ करूंगा मैं इनपुट को, टाइमर कैलकुलेट करने लग गया टाइम। देखो इनपुट ऑफ है, आफ्टर डिले इट विल टर्निंग ऑफ द आउटपुट। 9 10 ऑफ हो गया। और अगर ऑन ऑफ कैलकुलेट कर रहा है, अब बीच में मैं फिर से ऑन कर देता हूं, वापस से 0 पे आ जाएगा और आउटपुट हमारी ऑन ही रहेगी। जैसे अब दोबारा ऑफ करूंगा ये, तो ये कहाँ एप्लीकेशंस कहाँ है इनकी? एप्लीकेशंस वहां पे है लाइक जैसे कि अभी हमें जाना है या शिफ्ट चेंज हो रही है, तो इफ यू वांट टू टर्न ऑफ द मशीन देन कनेक्ट द टाइमर विद इट, टर्न ऑफ द इनपुट, एज द साइकिल कंप्लीट्स इट विल ऑटोमेटिकली टर्निंग ऑफ द मशीन इटसेल्फ, और आपको वहां पे मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। There are so many applications. Last timer is T on R. ये ऑन डिले का एक्सटेंडेड वर्जन है, T on R. Now इसमें एक इनपुट एक्स्ट्रा है, that is called reset. This is called one time use timer. I0.1 में हमने रिसेट ले लिया। अब इस टाइमर की कैपेबिलिटी क्या है? सेम ऑन डिले टाइमर की तरह ही है, बट कैपेबिलिटी ये है, लेट मी रिसेट इट फर्स्ट। ये पुराने टाइमर का टाइम लेके बैठा हुआ है, I0.1। देखो अभी वहां पे 0 होगा। फीचर है इस टाइमर का, इट हैज द रिज्यूमिंग कैपेबिलिटी। रिज्यूमिंग कैपेबिलिटी का मतलब ये है व्हेन वी आर वर्किंग ऑन असेंबली लाइन और प्रोडक्शन लाइन, so there are multiple things that will be put on a conveyor belt, and there are different multiple stations that will be performing some task on it. What if there is any power loss? What if there is any power loss? और जब पावर लॉस होगा दैट मीन्स टाइमर विल रिटर्न टू 0। टाइमर 0 पे रिटर्न हो गया तो क्या होगा? ईच एंड एवरी प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to the time. But this timer has a capability where the timer will stop, from there it will start again calculating. But ये रहेगा preset के ऊपर, after preset it will stick to 10. So let's have a look. अभी ये नॉर्मल लेके चलते हैं, जैसे नॉर्मल हमारा ऑन डिले था, ऑन किया इनपुट को, टाइमर ने कैलकुलेट किया, डिले के बाद ये आउटपुट हो जाएगा हाई और रिमेन्स इन हाई कंडीशन, जैसे का ऑन डिले टाइमर करता है। बट ऑन डिले टाइमर में जैसे ही विल टर्न ऑफ द इनपुट, टाइमर विल रिटर्न टू 0 एंड आउटपुट ऑल्सो टर्न ऑफ। बट इन दिस केस it will not turn off because it has a resuming capability until or unless will not reset it. As you can see, I'll remove the supply, it will still stick to 10 and having output in on condition. तो इसे वापस से यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे रिसेट करना पड़ेगा। रिसेट and 0. Now second case, when I'll turn on, चल रहा है टाइमर, अब मैं इसको ऑफ कर देता हूं, तो टाइमर विल स्टिक where it will be stopped. Timer will stick where it will be stopped. It will not return to 0. It will return to 0 when we'll press reset button. Now suppose अब मैंने इसे ऑन किया 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद, 1 महीने के बाद या 1 साल के बाद, it will start calculating the time from where it will stopped. So ये असेंबली लाइंस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जहाँ पे कंटिन्यूस लाइन रहती है वहां पे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टी। अब रिसेट करना है तो रिसेट का बटन ऑन करो, टाइमर रिटर्न टू 0। ये थे टाइमर्स, हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। जिन लोगों ने असाइनमेंट अभी तक जमा नहीं कराई है सबमिट करवा दो टाइम से। ओके, अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकता है, अगर कल पूछना तो कल भी चलेगा। ओके, तो ये टाइमर्स थे, कल हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, देखते हैं क्या क्या लॉजिक्स कर सकते हैं। और एक बार इसको चला के जरूर देख लेना ये कैसे काम करते हैं, क्योंकि कल सीधे सीधे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इनके ऊपर, और कंपेयर इंस्ट्रक्शन भी साथ के साथ यूटिलाइज होगी इसके।
ठीक है, ओके, थैंक यू, विल सी यू टुमारो, कल मिलते हैं।